Namaste. Dear student, in last period we have discussed direction angle, direction cosine, direction ratios and interrelation between these three. That means when alpha, beta, gamma, these are direction angles. These three direction angles gives us the value of direction cosines. So, direction cosine of a vector or a line can be evaluated by using these three angles. First direction cosine we call it as a L, can be obtained by using alpha with cos. Second direction cosine is nothing but cos of beta, and third direction cosine n is equal to cos of gamma. We are having three new numbers and we call them as a direction ratios. What they satisfy? They satisfy one simple condition, that when we take in the denominator of L, M, N, they maintain the same ratio if I call it as a lambda. So, these three numbers A, B, C are called as a direction ratio of vector or line whose direction cosines are L, M, N. So, this is simple information, and using this information we have said that when direction cosine are having this relation, that is L square plus M square plus N square is equal to 1, that means cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Using this relation, we have got the value of direction cosines in terms of direction ratios. So, what that relations are? The first relation, to get the value of L, is equal to plus or minus A upon under root of A square plus B square plus C square. To get the value of M, we can say plus or minus B upon under root of A square plus B square plus C square, and to get the value of N, same plus or minus next, that is C, and same denominator under root of A square plus B square plus C square. And we know that when 2 points are given, if I consider the point P with the coordinate x1, y1, z1, and point Q with the coordinate x2, y2, z2, then the line, that is direction ratios of line PQ और वेक्टर PQ बार R, किसी लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स अगर अवेलेबल है तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को या फिर उस लाइन से पास होने वाला जो वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर, एक पर्टिकुलर लेंथ वाला वेक्टर होगा, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आप डायरेक्टली कह सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. तो पहला जो आप ये कहते हैं उसको निकालते समय ये पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट है उसकी सब्सट्रैक्शन लेना है. तो x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो जो दूसरा आप b से कॉल करते हैं उसको फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1, और तीसरा डायरेक्शन रेशियो z2 माइनस z1. So, these three can be evaluated by using the coordinate of the point supplied on the line or the vector on which point P and Q are given to us. Now, I want to use some examples related to exercise 5.3. Some example we have already discussed from this exercise. More example
related to this concept we want to discuss in today's period. So, first example which I want to discuss from exercise number 5.3 is if a line makes an angle, if a line makes angles, three values of angles are 90 degree, 135 degree and 45 degree with positive directions of x, y and z axis respectively, then find direction cosines of the line. So, what we have got? We have supplied three angles which we call as the direction angles of the line. So, we can say in solution given पहला जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, इसलिए उसको आप नोटेशन के लिए अल्फा कह सकते हैं। दूसरा जो है वो बीटा वाई एक्सिस के साथ है जिसकी वैल्यू है 135 डिग्री और तीसरा जो एंगल है 45 डिग्री वो जेड एक्सिस के साथ है जिसका नोटेशन गैमा होता है। अब आपके पास तीनों एंगल अवेलेबल है तो आप डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, पहला डायरेक्शन कोसाइन जिसको आप यल कहते हैं उसको फाइंड करना है तो कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है और कॉस एज इट इज अल्फा तो 90 है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। दूसरा जो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू है यम और यम की वैल्यू निकालते समय कॉस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है और बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा है 135। सो दिस 135 कैन बी split up using 90 as a first and second angle will be 45. When first angle is 90 means pi by 2 and pi by 2 gives us multiple as a 1 which is odd, that's why cos is converted into sine with 45 degree and this angle 135 lies in second quadrant in which cos is negative, that's why it is minus. So, minus as it is and sin 45 is 1 upon root 2. That is why the value of m, that is second direction cosine, is minus 1 by root 2 and third, that is n, can be evaluated by using cos gamma. So, this is cos of gamma means 45. So, this gives us cos 45 as a 1 upon root 2. So, the direction cosines of line of the line R, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है पहला 0, दूसरा है -1 अपॉन रूट 2 और तीसरा है 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल डायरेक्शन एंगल का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, opposite of first example, a line makes angles of measure 45 and 60 degrees with the positive direction of x and z axis respectively. Find its angle made with positive direction of y axis. So, what is given? With x and z, the line makes an angle 45 and 60 degree. We want to get its angle with positive direction of y axis. So, what is given? In example, given is the angle with x axis, it is represented by alpha. So, alpha is 45 degree and beta is
unknown, beta is angle with y axis, so it is unknown, but the gamma is given as a 60 degree. Now we want to get one angle knowing two angles, so we have to use this relation. This relation is capable of using 2 and finding remaining, that is third one. So use this relation and use the value of alpha and gamma in that relation. We will get the value of, first of all, cos beta, and from that cos beta we can get the value of beta. So we will use that relation. So we know that relation is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Using value of alpha and gamma in these places, we will have the next step as cos alpha means 45, its bracket square, cos square beta as it is, plus cos gamma means 60, its bracket square, as the square is transferred to the bracket. Now cos 45 is 1 upon root 2, cos square beta as it is, plus cos 60 is half and its square. So taking square on this nr and dr, square of this quantity. So this will give us 1 by 2, cos square beta will be as it is, and this square will be 1 by 4, right hand side as it is. Transferring these two numbers to the right hand side, we will get the value of cos square beta as 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4. If I take the value of first two number, 1 minus 1 by 2, it is 1 by 2, and 1 by 2 minus 1 by 4. So these two can be evaluated by taking cross. So this cross will be 4, this cross will be minus 2, and denominator product will be 8. So what we have, this subtraction is 2 upon 8. So this is 1 by 4. So what is the value of cos square beta? Cos square beta is 1 by 4. So if we take the square root on both the sides, this will be plus or minus 1 upon 2, प्लस और माइनस 1 अपॉन 2. तो आपको प्लस की वैल्यू तो इमीडिएट मिलती है. कॉस की कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होती है? कॉस की 1/2 मेंटेन करने वाली वैल्यू 60 के लिए है. कॉस 60 ही 1/2 होता है. लेकिन कॉस कौन से एंगल के लिए -1/2 होता है? -1/2 के लिए कौन सी वैल्यू है? तो ये 90 + 30 वैल्यू होती है कॉस के लिए, जो निगेटिव मेंटेन होती है. तो आप अगर चेक करना चाहते तो कर सकते हैं. तो ये पहला जो आपको एंगल एक्सपेक्टेड है, ये बीटा की वैल्यू पहली इमीडिएट मिलती है. बीटा की वैल्यू मिलती है पहली, दैट इज 60 डिग्री. और आप अगर चेक करते हैं रफ में, तो कॉस को 120 अगर यूज करते हैं तो कॉस 120 क्या होता है? कॉस 120 होता है 90 + 30. और 90 + 30 में ये जो 90 + 30 का 90 जो है, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करता है सेकंड एंगल के साथ, 30 के साथ. और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है जिसमें कॉस निगेटिव होता है. तो -1/2 ये कॉस 120 की वैल्यू होती है. तो कॉस 120 -1/2 है. तो -1/2 कॉस के लिए कौन से एंगल के लिए आती है? वो एंगल आपको लिखना है. तो ये 120 के लिए. तो इस तरह से आपके पास ये दो आंसर्स एक्सेप्टेड है. ये भी हो सकता है बीटा, और ये 60 भी हो सकता है बीटा. तो इस तरह से ये y पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो आपका एंगल टारगेट करने का क्वेश्चन था, वो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट एग्जांपल, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स P 6 -7 -1 एंड Q 2 -3 1. फाइंड डायरेक्शन रेशियोज and direction cosine of the line. Here data is not about the angles, data is given 2 points on the lines. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले का यूज करके उस लाइन के डायरेक्टली आप डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. तो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स एक बार गिवन पॉइंट्स
ऑन द लाइन पहला जो पॉइंट है P 6 - 7 - 1 एंड दूसरा जो पॉइंट है Q 2 - 3 1। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली यूज करके आप डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं लाइंस के। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। पहला डायरेक्शन रेशियो आप कहते हैं ए, और ए को निकालना है तो P से Q तक अगर आपका टारगेट है, P और Q दो पॉइंट है, तो दूसरे से पहले के सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करो। तो ये 2 से इस 6 को सब्सट्रैक्ट करना है तो ये मिलती है वैल्यू -4। उसके बाद में आपको दूसरा जो डायरेक्शन रेशियो आप B कहते हैं उसको y2 - y1 यूज करना है। तो y2 मीन्स सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो -3 है, सब्सट्रैक्शन बीच में, और ये ऑलरेडी निगेटिव है तो यह प्लस हो जाता है, और ये 7 - 3 है तो ये 4 मिलता है। फिर आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C निकालते समय तीसरे की सब्सट्रैक्शन होती है, और ये 1 माइनस ये सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ये माइनस है तो ये +2 हो जाता है। तो लाइन जो P और Q से पास होती थी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इमीडिएट मिलते हैं। तो आपको A की वैल्यू मिली है -4, B की वैल्यू मिली है 4 और C की वैल्यू मिली है 2। अब ये 3 वैल्यू अगर अवेलेबल है तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स L, M और N की वैल्यू ABC के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो ये तीनों अवेलेबल है तो डायरेक्शन कोसाइन की तरफ जा सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, पहला जो डायरेक्शन कोसाइन है जिसको आप यल कहते हैं वो +b और -b इस रिलेशन के साथ एग्जिस्ट होता है, a अपॉन √a² + b² + c²। तो ये प्लस और माइनस एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है, ये -4 है तो ये माइनस ब्रैकेट में यूज करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद +4 का स्क्वायर करेंगे मीन्स b का स्क्वायर करेंगे, और प्लस c का स्क्वायर करेंगे, c तो 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, तो ये प्लस माइनस एज इट इज, -4 एज इट इज। ये रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है ये कितना है, तो ये है 16, दूसरा भी 16 है, और बाद में 2 का मीन्स 4, तो ये मिलता है आपको 36 प्लस और -4 एज इट इज, और रूट के अंदर 36 है तो क्या लिखेंगे, तो इसको स्प्लिट अप करना है तो क्या कर सकते हैं, 9 4 बराबर है 9 4 अगर इसको लिखते हैं तो 9 4 तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 बाहर आता है तो आपको मिलता है 3, और 4 बाहर आने से रूट के आपको मिलता है 2। तो ये जो यल की वैल्यू है ये प्लस और माइनस -4 अपॉन पहली वैल्यू मिलती है 3 और दूसरी वैल्यू रूट से बाहर आने के बाद 2। इस 2 से ऊपर का 4 कैंसिल होता है और आपको लास्ट में मिलती है प्लस और माइनस -2 अपॉन 3। तो यल प्लस और माइनस -2 अपॉन 3। अब इसमें एक रिलेशन आप कर सकते हैं तो हर एक में प्लस माइनस आने वाला है, तो ये जो प्लस इंटू माइनस माइनस मेंटेन होगा, और ये माइनस इंटू माइनस सेकंड पोजीशन पे प्लस मेंटेन होता है, वो आप बाद में कर सकते हैं। अब आपका नीचे का जो कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आया होगा, ये सबके लिए डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये सब के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 2 आगे जाके। तो ये m की वैल्यू निकालते समय प्लस और माइनस होगा, ऊपर भी यूज करना है, और नीचे ये रूट वाली क्वांटिटी a² + b² + c² नीचे। तो b की वैल्यू तो आपको मालूम है 4 है, और इसका आंसर कितना आता है, रूट में पूरा कैलकुलेशन जो आपने किया था
36, उसके बाद में 9 9 4, फिर उसके 3 और 2 आते हैं, तो ये 2 से 4 कैंसिल होके प्लस और माइनस 2/3 आता है। और n की वैल्यू फाइंड करना है तो प्लस और माइनस c अपॉन सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, सो प्लस और माइनस एज इट इज, c की वैल्यू है 2 और उसके नीचे फिर एक बार ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे इसका, तो ये यही वैल्यू मेंटेन करता है, ये 2 2 कैंसिल होता है और आपको मिलेगी वैल्यू 1/3। तो आपके लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या है? तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप इस माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस से माइनस का इसका साथ रिलेशन अगर लेते तो आप कह सकते हैं माइनस इंटू प्लस 2/3 कॉमा इसको पॉजिटिव 2/3 निगेटिव 2/3 और इसको लेते समय पॉजिटिव निगेटिव 1/3। तो इसका पहले निगेटिव आता है तो ये निगेटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ये पॉजिटिव निगेटिव। फोर्थ एग्जांपल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। जैसे पहले एग्जाम्पल आपने लिया था कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं ट्रायंगल्स के, उसी तरह से एल्टीट्यूड्स लंब ट्रायंगलचे जे 3 परपेंडिक्युलर साइड्सवर टाकतो ते एकाच पॉईंटमधून पास होतात, एका पॉईंटमधून छेदून जात असतात, सिंगल पॉईंट, एक संपाती त्या लंब आहेत असं आपण म्हणू शकतो, ते प्रूव्ह करण्यासाठी वेक्टर मेथड। सो altitudes of a triangle are concurrent, means they pass through a single point. To prove this, we have to consider triangle, its vertices, the perpendiculars which we call as altitudes. So we are considering in proof, let A, B, C be the vertices of triangle ABC, AD, after that BE and CF be the altitudes of triangle ABC, and AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC, later on BE is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB. Okay, now we want to use dot product mainly in this, so we want to use their position vectors of all 6 points. So A bar, B bar, C bar, D bar, E bar, F bar be the position vectors of the points capital A, B, C, D, E, F respectively. Let P, अब 3 जो P से पास आपको प्रूव करना है उसमें से 2 पास होते हैं ऐसा आपको करना है और तीसरी भी P से ही पास होती है। कोई भी 2 एक जगह पे तो इंटरसेक्ट होते हैं लेकिन 3 होते कि नहीं वो चेक करना है, तो 2 कंसिडर करेंगे। तो आपका टारगेट है लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स AD एंड BE, AD एंड BE, दिस इज द P point which is the intersection of the altitudes AD and BE. Our with position vector P bar, therefore AP bar, as we are saying this AD is perpendicular on BC, so AP is also perpendicular on BC, as well as this BP is also perpendicular on AC, as we are saying total altitude is perpendicular, that is why this part of the altitude is also in perpendicular direction to that opposite side. So to show that altitudes are concurrent, it is sufficient to show that altitude CF passes through P, altitude CF passes through P. We will have to show that CF bar and CP bar and CP bar are कोलिनियर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन और C से लेकर आने वाली P तक की जो डायरेक्शन है
ये अलग नहीं है, एक ही है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आपको ए बी के ऊपर आती है उसी डायरेक्शन में P मिलता है, पॉइंट P होता है, या फिर वो एल्टीट्यूड भी P से पास होती है। आपका टारगेट प्रूव करने का है। तो ये दो जो वेक्टर्स है ये कोलिनियर है, ऐसा आपका टारगेट है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय शोइंग CP परपेंडिकुलर टू AB बार। CP वेक्टर CP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर AB बार। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो ऑलरेडी दो आपने परपेंडिकुलर है, जैसे CP को परपेंडिकुलर आप प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आपका अजम्पशन है कि ये P परपेंडिकुलर टू BC है और BP परपेंडिकुलर टू AC है, उसका यूज करना है। तो फ्रॉम वन वी कैन से AP is perpendicular to BC, that's why their dot as perpendicular vector gives us the dot as a 0. So AP bar dot BC bar is equal to 0. Similarly, BP bar dot AC bar is equal to 0. As we know that AP bar is P bar minus A bar. Dot as it is, what is BC bar? BC bar is C bar minus B bar. And in right hand side, in next, what is BP bar? BP bar is P bar minus B bar dot C bar minus A bar is equal to 0. अब ये दो ब्रैकेट के बीच में अगर डॉट है तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का वर्क होता है उसी तरह से डॉट को आप ले सकते हैं। तो इस P बार का डॉट दोनों वेक्टर के साथ लेना है। तो दिस P बार डॉट C बार, P बार डॉट B बार विथ माइनस साइन, माइनस A बार विथ C बार, माइनस A बार इंटू डॉट माइनस B बार, तो माइनस माइनस प्लस A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0। और ये दो ब्रैकेट का डॉट यूज करते हैं तो P बार डॉट C बार, P बार डॉट माइनस A बार, दिस मीन्स माइनस P बार डॉट A बार, माइनस B बार डॉट C बार, माइनस B बार डॉट C बार, माइनस B बार डॉट माइनस A बार, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस B बार डॉट A बार। तो ये आपके पास नंबर 2 और नंबर 3 है। अब ये आपका टारगेट तो ये है, आपको CP बार परपेंडिकुलर टू AB बार प्रूव करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 में ऑलरेडी P बार माइनस C बार है और इसको सब्सट्रैक्शन करने के बाद माइनस साइन आएगा। अगर मैं इसी जगह पे इसका सब्सट्रैक्शन चेक करता हूँ तो सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना, इसके सभी के साइन अपोजिट आते हैं, सभी के साइन अपोजिट आते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिलेशन के बाद ये दोनों एज इट इज मिलते हैं, इसको कैंसिलेशन नहीं मिलता है और इसको भी कैंसिलेशन नहीं मिलता है, सिर्फ P बार डॉट C बार पॉजिटिव निगेटिव वाला कैंसिल होता है। तो और आपके पास क्या है, 3 नंबर में से पास, 3 से पास, इक्वेशन 3 से जो रिमेनिंग टर्म्स है माइनस P बार डॉट A बार आपने यूज किया है। इक्वेशन नंबर 2 से जो पॉजिटिव बन रहा है माइनस का प्लस हो रहा है तो वो है P बार डॉट B बार। उसके बाद में इक्वेशन 3 से माइनस B बार डॉट C बार और इक्वेशन 2 से माइनस माइनस प्लस होगा A बार डॉट B बार, और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। इसका माइनस है क्योंकि A बार डॉट B बार और B बार डॉट A बार इक्वल होता है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है। तो इस तरह से रिमेनिंग 4 टर्म्स में से पहले दोनों में से अगर आप P बार डॉट कॉमन लेते हैं तो P बार डॉट कॉमन लेने से इस टर्म से ब्रैकेट के अंदर मिलता है B बार, और P बार डॉट कॉमन लेने से माइनस A बार इसमें आ जाता है ब्रैकेट में। माइनस C बार अगर रिमेनिंग 2 डॉट प्रोडक्ट से अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस C बार डॉट कॉमन लेने से यहाँ B बार मिलेगा, और ये पॉजिटिव से आपको नेगेटिव में और एक मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिवनेस मेंटेन हो सके। तो C बार डॉट बाहर लेने से इस ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म में A बार मिलता है। राइट साइड में 0 माइनस 0 का स्ट्रक्चर 0 ही होता है। अब आपके पास 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बाहर, एक ब्रैकेट के बाहर है P बार डॉट और दूसरे ब्रैकेट के बाहर है माइनस C बार डॉट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने
यहाँ यूज़ की है कि ये जो पी बार डॉट और सी बार डॉट है इनको आप इस ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो पी बार डॉट माइनस सी बार एज इट इज, दोनों ब्रैकेट को आपने डॉट से ज्वाइन किया है और जो सेम ब्रैकेट था उसको आपने यूज किया है, एक वन टाइम यूज किया है। तो इससे क्या तैयार होता है, पी बार माइनस सी बार से तैयार होगा सी पी बार डॉट एज इट इज, बी बार माइनस ए बार से तैयार होता है ए बी बार इज इक्वल टू 0। तो आपका जो टारगेट था सी पी बार परपेंडिकुलर दिखाना था ए बी बार को, तो दो वेक्टर का डॉट आपने 0 यूज किया है, 0 प्रूव किया है। तो 0 डॉट मेंटेन करने वाले, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 मेंटेन करने वाले वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो सी पी बार इज परपेंडिकुलर टू सी पी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बी बार। तो इसी तरह से जो तीसरी एल्टीट्यूड है सी एफ नाम की, वो भी पॉइंट पी से पास होती है, इसका ये सीधा मतलब है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि तीनों एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के कॉन्करेंट है। इस तरह से ये थ्योरम अपने वेक्टर का यूज करके प्रूव किया है। वी विल स्टॉप हियर।